Yesterday, once the campaign for Rajasthan got over, the Prime Minister was at Krishna Janmabhoomi. Today, it was the turn of Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh. He visited Ayodhya. Remember, the PM during his tenure has made a massive temple push from Kashi Vishwanath Dham to the Mahakal corridor in Ujjain, from Kedarnath redevelopment project to the inauguration of the Ram Mandir, which of course is now scheduled for the 22nd of January. While the Prime Minister was in Mathura, today Yogi Adityanath not just offered prayers at the Ram Janmabhoomi, but also said that the Congress deliberately had put off the temple date for years altogether, only in order to keep their vote bank happy. An echo of what the Prime Minister said yesterday in Mathura, talking about how the mentality of slavery was a thing of the past, and soon the glory of Mathura would parallel what has been seen in Kashi and Ayodhya. आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं, और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। कांग्रेस साथी को आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप थोड़ा सोचिए, सनातन धर्मावलंबियों को इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखी, मोदी जी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को इसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तेलंगाना में भाजपा सरकार सभी को बारी बारी रामलल्ला का दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करा देगी। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। But naturally, this is an extremely sensitive issue for any opposition party. Most reacted, asking why real issues are not being discussed and why, predictably, religion and temples is the BJP's go-to theme when faced with tough elections. জনগণের টাকা দিয়ে একটা মন্দির করে ভাবছো ইতিহাস তৈরি করলে। কই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্কাই ওয়াক আমরা করে দিয়েছি, জনগণের থেকে তো টাকাটা নিতে হয়নি, আমরা সরকার থেকে করেছি। তারাপীঠ মন্দির করে দিয়েছি, আমাদের সরকার থেকে করেছি। কালীঘাট মন্দিরের ভেতরটা মুকেশরা চেয়েছিল, ওদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাইরে এটা 300 কোটি টাকা দিয়ে স্কাই ওয়াক আমরা করে দিচ্ছি। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा रिलीजियस है। आप बेरोजगार हो जाएं, आपको रोटी खाने को न मिले, सर्दियां आ गई हैं, आप पे कपड़े न हो, सर्दियों में बच्चों के जूते न हो, या नौकरी नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, सड़कों पे जानवर घूम रहे हैं, अस्पतालों में दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं है, कैंसर जैसी बीमारी से गरीब बर्बाद हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन उनका रिलीजियस एजेंडा रहे और रिलीजियस एजेंडा पे ही चुनाव लड़ते हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी उन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाई है। Tuhin Sena, JVC Shriram, Kamar Zaman Chaudhary continue with us. The spokesperson of Samajwadi Party, Kapish Srivastava, join us. Tuhin Sena, it seems that Lord Ram and Lord Krishna are the new double engine, is it? You know, Padmaja, unlike the Congress party, which has been crassly opportunistic with its temple visits, we are very clear of the fact that Bharat is a civilizational nation, and for us, our religious beliefs are a way of life,
there is no opportunism in it. We were the only party that was consistent in the last 4 decades in our stand with regard to the Ram Temple. Without fail, the Honorable Prime Minister visits Kedarnath at least twice a year. Dev Deepavali, which used to be, an ordinary festival, is today one of the festivals to really look forward to in many parts of the country. So for us, it is a way of life. But, the Congress party, I can understand, they only resort to temple visits when they realize that the Hindu population is upset with them. When they come out of temples, they glorify Tipu Sultan, the biggest slayer and destroyer of temples in South India, as an icon of secularism. So the Congress hypocrisy when it comes to religion is very pronounced. On the contrary, we are very proud to wear our civilizational identity on our sleeves and go ahead with it as a way of life. Are you saying it is completely coincidental that just before Rajasthan is to poll, you have the Prime Minister going to Mathura, he is praying to Mirabai, he is honoring Mirabai, he is, praying to Lord Krishna, who of course has huge number of followers across Rajasthan. No, Krishna Bhakt hote hain wahan pe. That Yogi ji today goes to Ayodhya. All of this is coincidental. So what was the festival today that he went to Ayodhya? Let me put it this way. Yesterday coincided with the 500th birth anniversary of Sant Mirabai. So why should the Honorable Prime Minister be apologetic and not visit it if he wishes to? Like I said, this is not the first time he visited a temple. He has been visiting, the transformation of Hindu temples and the increase in religious tourism because of the efforts taken by him is well known across the world. Okay. So why should we be apologetic if the day is coinciding with a certain event? Okay, Kapil When Srivastava. it comes to Ayodhya, obviously a very grand historic event is planned in 2 months' time. If, Yogi ji decides to visit there to see the arrangements or to take account of what is happening, there is a huge amount of development of infrastructure that is happening in Ayodhya. If he goes there and also visits the temple, do we owe an explanation to the opposition? Okay, Kapil Srivastava, no apology, no explanation. देखिए, एक बहुत स्पष्ट सी है कि जब आदमी अपने काम के भरोसे नहीं होता है तो वो निश्चित रूप से भगवान के भरोसे होता है। और भगवान ये कहते हैं कि जो अपने काम पर भरोसा नहीं करता, हम उसका साथ नहीं देते। आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शंस थे, उस दरमियान ये हमारे पीएम साहब जो है वो बांग्लादेश की यात्रा पे थे, वहां पे भी उन्होंने मंदिर विजिट किया था और ये सारे लोग जानते थे वो क्यों कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल से सूखड़ा साफ, तो वो प्रधानमंत्री जी अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आरएसएस की बात नहीं सुन। आरएसएस इस बात को कह रहा है कि साहब आपके देश का जादू और मूल्य खत्म हो चुका है, अब काम के नाम पर ही इलेक्शन में जीत हो सकती है, नाम के आधार पर जीत नहीं हो पाएगी। और कब तक आप किसी चीज के पीछे जाके छिपते रहेंगे? जो चीज सुमिरने की होती है आप उसके नारे लगवाते हैं। पूजा और आस्था का विषय है, प्रत्येक व्यक्ति पूजा और समर्पण करता है पहले अपने आप को, उसके बाद किसी काम के लिए बाहर निकलता है। ये हर घर का एक कल्चर है और हर धर्म में है ये चीज। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही धर्म में है, सनातनी में। ये सभी धर्मों में है कि आदमी कोई काम के लिए निकलता है जब सुबह, तो स्नान ध्यान करने के बाद वो अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करके फिर समर्पण भाव से निकलता है। तो ये प्रदर्शन करना राजनीति में, चलिए ठीक है, फोटोग्राफी में अच्छा लगता है। आप अगर कह रहे हैं कि ये रिलीजन की राजनीति है, ये रिलीजन की राजनीति है, अगर मंदिर जाना रिलीजन की राजनीति है, जस्ट वन काउंटर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू कपीश जी, अगर मंदिर जाना रिलीजन की राजनीति है तो अखिलेश जी तो अभी भी बोल रहे हैं कि 2024 के लिए हम पीडीए की राजनीति करेंगे, उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। आप तो ओपनली कह रहे हैं हम भी कास्ट और रिलीजन की राजनीति कर रहे हैं। अल्पसंख्यक की राजनीति करना भी तो रिलीजन की राजनीति है, वो तो कह रहे हैं हमारा फॉर्मूला है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये बहुत स्पष्ट सी बात है, जो आदमी पीछे रह गया है, जो जिसके पास अभी तक पावर नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचाना ही ईश्वर की वंदना है, और वो समाजवादी पार्टी कर रही है। तो वो तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, पीछे रह जाना तो इकोनॉमिकली वीकर है, उसमें पीडीए किधर से आ गया? आप ये नहीं कह रहे कि हम गरीब के साथ हैं, आप कह रहे हैं हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ हैं। पद्मजा सुने, मैं भी सवर्ण परिवार से आता हूं, एक कास्ट परिवार का।
हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से राजनीतिक कल्चर के अंदर भी लोग पीछे रह गए, किस तरीके से सामाजिक चीजों में भी पीछे रह गए। बड़े बड़े पदों पर बैठने के बाद भी जो जिस बिरादरी से आता है उसको अपर कास्ट किस बिरादरी से देखती है किस आंखों से, वो किसी से छूता हुआ छूता नहीं। क्यों? अभी उस डीएनए आप खुद बोल रहे हैं आप अपर कास्ट से, आप बाकी लोगों को क्या किस किस नजरों से देखते हैं? तो आपको बार बार कह रहा हूं कि क्या समाजवादी सोच और विचारधारा है, क्या दक्षिणपंथी विचारधारा? नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि कास्ट से आप लोगों को एक तरीके से देखते हैं, तो आप तो खुद कह रहे हैं कि आप लोगों को नीच भावना से देखते हैं या हीन भावना से देखते हैं। जो हमारे पूर्वजों ने भुगताया है आज वही भुगतना पड़ रहा है। अगर आप सभी का सर्वांगीण विकास किए होते तो निश्चित तौर पे आज आरक्षण की बात नहीं होती, ना किसी जाति में बराबरी की बात होती, ना अपलिफ्टमेंट की बात होती। लेकिन चूंकि हम सारे लोगों के पूर्वजों ने मिलकर के इस तरीके का किया है उनके साथ कि वो बहुत पिछड़े रह गए, तो निश्चित रूप से देश के सम्मान ने वो एक जगह दी है कि हम अपलिफ्टमेंट करें। इसको आप वर्ग में बांट करके नहीं देख सकते। वेल देन इन दैट केस सर, आपकी तो इतनी सरकार रही है, इतने सालों तक सरकार रही है, देन उत्तर प्रदेश शुड हैव बीन अ कंप्लीटली कास्टलेस सोसाइटी बिकॉज यू आर समाजवादीज एंड यू बिलीव इन कास्ट जस्टिस, सो यू शुड हैव मेड उत्तर प्रदेश इनटू कास्टलेस सोसाइटीज. Anyway, JVC Sriram, can it be ignored the confluence of electioneering and temple going? Like Kapil Srivastava said, Bengal elections, Bangladesh temple, Rajasthan elections, Mathura temple, Telangana elections, Ayodhya temple. Today, by the way, you had Himanta Biswa Sarma saying कि हम हैदराबाद को भाग्यनगर कह देंगे after the goddess. So it's too much hand in glove. See, BJP is an Hindutva nationalist party, is very well known. And there is nothing wrong in it. There is nothing to be apologetic about it. There is nothing to be shameful about it. But why is the media, in fact, media sometimes have questioned, but there is no answer from Congress party. Rahul Gandhi went on a temple visit, temple tourism in Gujarat. He called himself as a Brahmin. And in Madhya Pradesh, he went around. And when Priyanka Vadra in Uttar Pradesh made herself like a Bhagwan and started saying Sarvamangala Mangalye, Hanuman Chalisa was recited by Arvind Kejriwal. Mamata Banerjee recited slokas. Now, what is happening is when BJP, which is a party committed to Hindutva, cultural nationalism, the other parties are getting afraid because the other party, Samajwadi Party, from the beginning have been dividing Hindus in the name of caste. That is what we've been saying. What they want to do is they want to divide Hindus in the name of caste, and they want to unite minorities against BJP. Now, none of these leaders question Jamaat, saying, why did you issue a fatwa for 69 constituencies, Congress in Telangana, 41 for BRS, 7 to MIM, 1 to CPI, 1 to BRS? Now, why not single support to BJP? Because they don't want BJP to come. Why? Because they want to unite minorities. And even if he had gone, I don't know, because as the spokesperson, BJP spokesperson said, he might have gone for the sake of, being Mirabai's birth anniversary was coinciding with that. But even though if he had gone, what is wrong in it? An Hindu can go to an Hindu temple. When Narendra Modi ji went to Kedarnath, it became a spectacle. When an Hindu Prime Minister takes bath in Ganges River, it is a pride moment for the millions and billions of Hindus in this country. And not when a Prime Minister said the access to the resources of this country should be given to minorities. हिंदी में कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश जी भी अयोध्या गए थे. वहां पे उन्होंने कहा था कि भाई हम गंगा जमुनी तहजीब बचाने के लिए जा रहे हैं. पॉइंट इज करते सब हैं, बट बीजेपी को लोग विश्वास करते हैं. व्हेन दे आर गोइंग टू मंदिर, पीपल एक्चुअली बिलीव देम. अब आपका अगर नहीं लोग बिलीव कर पा रहे हैं आपकी भक्ति और आस्था पे, दैट इज योर प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की. नहीं पद्मजा जी, कोई समस्या नहीं. हम तो सनातनी और पुरातनी ही हैं, और भी सनी और पुरातनी. वंशज भी आप जान ही रहे हैं कि वो किसके हैं. किसी को कहने की जरूरत नहीं है. अगर भाई साहब पुरुष हैं तो कहने की जरूरत नहीं कि हम पुरुष हैं. आप महिला है तो आपको कहने की जरूरत नहीं है. महिला है, सभी जानते हैं आप महिला है. तो इसी बात को मैं आपको कह,
और हमारे भाई साहब ने एक बात स्पष्ट कर दी। दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू सर। कहने की जरूरत होती है, इसीलिए पासपोर्ट में एक सेक्शन होता है जिसमें जेंडर लिखना पड़ता है, तो आपको बताना पड़ता है आपका परसुएशन क्या है। आप अपनी नेशनैलिटी लिखते हैं, ये नहीं कहते मैं इंडियन हूं तो कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस यू कोटेड द एग्जांपल। देखिए नहीं, वो एग्जाम्पल जो आपने दिया है वो लेखनी में तो चलता है जहां पर आप फॉर्मेट भर रहे हो, लेकिन सामने जो आपको बैठ करके देख रहा है, जो आपको सामने दिख रहा है, उसके पद्मजा जी लिखने की जरूरत नहीं। क्या ये चारों लोग बैठे, कोई जरूरी कहाँ लिखा हुआ है कि आप महिला है? आपका तो नाम लिखा हुआ है। मैं इस बात को कह रहा हूं, उसको आप उससे कंपेयर मत करें, आम को इमली से नहीं कंपेयर किया जाए। मैं दूसरी चीज आपको ये कह रहा हूं कि जो भाई साहब ने अभी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी या अन्य दो दल हैं, जो विपक्ष के दल हैं, वो जातीय राजनीति करते हैं, जातियों को बांटते हैं। सब आपने जाति बनाई क्यों? ये किसने जाति बनाई? फिर किसने मंदिर दर्शन को बैन कर दिया था? किसने डपली जो खजड़ी बजवाई थी? कपिल जी, प्लीज कम बैक टू द टॉपिक। आई आस्क्ड यू अ सिंपल क्वेश्चन। आपने कहा कि मंदिर जाकर के जबरदस्ती की ओवर्ट भक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि भक्ति दिखाने की कोशिश तो हर कोई करता है। अखिलेश जी भी ऐसा नहीं है कि गए नहीं है, राहुल जी भी गए हैं, प्रियंका जी ने भी आरती की है, वो महाकाल भी गई है, पर लोग उनको बिलीव नहीं करते। मंदिर के पीछे छिप करके राजनीति नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो करती है। तो आप मंदिर जाते हैं, आप भक्ति के लिए जाते हैं, वो जाते हैं तो राजनीति के लिए जाते हैं। एक मिनट, एक बात तो सुन लीजिए, फिर आप कह लीजिएगा। मुझे आप एक बात बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नया राम मंदिर बन रहा है, 1947 से था, और किसके उस पर बन रहा है? चक्रपाणी महाराज, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो प्लेंटिफ नंबर 1 है, प्लेंटिफ नंबर 2 धर्मदास जी महाराज हैं, तीसरे नंबर के प्लेंटिफ शंकराचार्य जी महाराज हैं, और तीनों को राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं। सर वो छोड़ दीजिए, अब वो हो गया 22 तारीख को, दैट डिबेट इज सेटल्ड। माय क्वेश्चन वाज अबाउट विजिट्स। लेट मी ट्राई एंड आस्क द कांग्रेस दैट क्वेश्चन। क्या है कि आप पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करेंगे। ओके, कमरुज्जामान चौधरी, व्हाई इज इट दैट व्हेन योर लीडर्स गो इट इज रियल भक्ति, व्हेन अदर्स गो इट इज politics and elections? Why? Padmaja, it's a very simple explanation to your question. Can I take back to history on 19th May 2019? If you remember, that was the last day of the 2019 parliamentary elections. Our great supreme leader Narendra Modi ji was in Ekant Vas for a 15-hour long drama inside a Kedarnath cave. What was that? पद्मजा, it looks so simple. मोदी जी जा रहे हैं मंदिर में, किसी और को ऑब्जेक्शन हो क्यों सकता है? हजारों लाखों करोड़ों आदमी जा रहे हैं हिंदुस्तान के मंदिर में रोज, ये आस्था का मैटर है। लेकिन जहां भगवान को या मंदिर या तो फिर पॉलिटिक्स को ले आते हैं, यही पे ऑब्जेक्शन है कि दिखावा का धर्म का गुरु मत बनो। This is an India rich in cultural heritage, rich in its religious history. We are a secular nation. Just don't try to play. मैं बहुत समय से काफी जो है ओछे आरोप मैं काफी समय से ओछे आरोप सुनता आ रहा हूं। मुझे जवाब देने के लिए 1 मिनट का समय दीजिए। देखिए, जो लोग ये विक्टिमहुड प्ले कर रहे हैं ना, कि अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू समाज में भेदभाव है कास्ट के बीच, इनको मैं बता दूं कि प्राचीन काल में जो हमारे कास्ट के बीच में वर्गीकरण था, वो जन्म के आधार पे नहीं था, कर्म के आधार पे था। वो एक विकृत सोच थी, बीच में आई थी विकृत सोच, जो एक दूसरी दिशा में उस वर्गीकरण को ले गई थी। लेकिन ये लोग जो हैं, अपनी हरकतों को जस्टिफाई करने के लिए समाजवादी पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है कि ये सनातन धर्म के बारे में बात करें? इनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जनरल सेक्रेटरी, आदतन जो है बार बार कभी लक्ष्मी जी पर अटैक करते हैं तो कभी रामचरित्र मानस पर अटैक करते हैं। पिछले 2 महीनों में हमने देखा कि किस प्रकार से इंडी अलायंस के सभी पार्टनर्स जो हैं एक संचालित रूप से सनातन पर प्रहार करते आए। यहां तक कि डीएमके ने यह कहा कि इंडी अलायंस का गठन ही सनातन पर अटैक करने के लिए हुआ था। ऐसी स्थिति में जब हिंदू समाज की आस्थाओं पर अटैक होता है तो भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि हिंदुओं को हम कॉन्फिडेंस दें, और इसलिए हम और भी ज्यादा मंदिर जाएंगे। वैसे तो मंदिर जाना हमारे स्वभाव में है, लेकिन अब और भी ज्यादा हम मंदिर जाएंगे ताकि ये सनातन द्रोही जो हैं उनकी हिम्मत ना बढ़े कि ये दोबारा हिंदू आस्थाओं पर अटैक करे। All right, I'm going to leave it at that. And when we are talking about दिखावा, let me also remind you that the
2017 campaign of the Congress in Gujarat was actually launched by Rahul Gandhi from a temple, who walked up about 100 steps, if I am not mistaken. In 2018, he did the same thing for the Karnataka election campaign. And in 2022, he offered prayers at the Dwarkadhish temple following his arrival in Gujarat for the party's brainstorming session to chalk out a strategy for the assembly elections. Which one of these visits is bhakti and which one of these visits is dikhawa? I think the people remain the best judge. Thanks, gentlemen, for joining me.